Hello student, today I am going to start the Venn diagram. Different relations, or you can say the relation between various sets and universal set represented by a geometrical diagram that is known as the Venn diagram. This is clear? So here this is by this way, by this rectangle you can represent the universal set or giant. What will be? You will represent diagonally. This is the symbol for the universal set. This is clear? Now here relations are given. Operation on the set, union of two sets, suppose set A is given, set A and set B, two sets are given. How can you represent this? This will be universal set. Here it is A or it is the B. Both are the A and B are overlapping sets. Overlapping. This is A and this is B. Second case, A and B are non-overlapping. Correct? Then this disjoint set. This is known as the joint set or this is known as the disjoint set. So A union B, this is the A union B. Correct? Or this is A, this is B. A and B. So this is the A union B. J you represent because maybe you will be confused for A union B, or this is also A union B. This is for the non-overlapping, means the disjoint set, or this is for the joint set. Joint set में क्या होता है? कुछ कॉमन होता है, और नॉन ज्वाइंट में क्या? कुछ भी नहीं कॉमन होगा. Clear? Here third case, C. A is subset of B. In that case, this is set B or this is set A. Correct? A is subset of B. Now, A union B will be, A union B will be set B. देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? A is subset of B, A union B will be B. Now intersection of two sets. Second, intersection of A and B, set A and B. पहला A and B are joint set. Overlapping. This is A, this is B, this is universal set, or this portion is A intersection B. Correct? Second, A and B are
disjoint set. Two sets are given. A and B, two sets are given. Then A intersection B will be empty set. Nothing is common, so it will be empty set. Or third, A is subset of B. In that case, this is the universal set, this is set B, or this is set A. So what will be common between B and A? This A. This is the A union B. Sorry, A intersection B will be equal to A. Previously what we have seen? A union B equal to B. Now it is clear? Clear? Okay. Difference between two sets. दो सेट के बीच डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसको समझो. थर्ड, डिफरेंस बिटवीन टू सेट. सेट ए एंड सेट बी, टू सेट्स are there. This is the universal set. Now, first case for joint set. Two sets are joint. A and B. So you will get A minus B. A minus B क्या हो जाएगा? ये A minus B. मतलब A और B में से कुछ तो कॉमन है. ये पोर्शन जो कॉमन पोर्शन है वो A से निकल जाएगा, A माइनस B. और इतना पोर्शन देखो, ये क्या हो जाएगा? ये B माइनस से हो जाएगा. करेक्ट? और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? B हो जाएगा. आई सपोज इट इज क्लियर टू यू. B for disjoint set. Correct? यूनिवर्सल सेट. ये एक सेट हो गया, एक सेट ये हो गया. नाउ इट इज ए, नाउ इट इज बी. तो व्हाट विल बी ए माइनस बी? ए माइनस बी जो होगा, ए और बी में से जो कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब केवल ए हो जाएगा. ये दिस इज ए. और बी माइनस ए, तो इसको कलर्ड कर देंगे, ये नॉट कलर्ड हो जाएगा. और बी माइनस ए इक्वल टू बी. विजिबल? यस. नाउ इट इज क्लियर. डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स. मतलब डिफरेंस बिटवीन टू सेट क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू A बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B. ये कौन सा मेथड हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म. इसको हम कहते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू A बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B. समझ में आ गया? यही A माइनस बी का होता है. और दिस इज A माइनस बी. ये हो गया. अब आते हैं कंप्लीमेंट पे. बता दें, कंप्लीमेंट को बिगिनिंग में बताना चाहिए था, लेकिन बाद में कोई बात नहीं है. फोर्थ, दिस इज द A कंप्लीमेंट. कोई सेट A है, उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? ये यूनिवर्सल सेट होगा. और नाउ दिस इज सेट A. तो दिस पोर्शन except the set A
what element will be exist in the universal set, that is known as the complement of A. तो A complement equal to xi minus A. यूनिवर्सल सेट से A को निकालो तो xi minus A. This is known as the complement of any set. This is clear? Now see the some basic results about the cardinal number. ये तो वेन डायग्राम से था, अब cardinal number से क्या? और A minus B जो मैंने बताया था, that is known as the only A also. The A minus B is known as the only A, and B minus A is known as the only B. The elements which will be exist in the only B, not in the portion A and B. Clear? The element which will exist only in the A, not in the common portion of the A and B. तो हाँ, यहाँ पे फैक्ट्स, ये पहले वेन डायग्राम देखो. फर्स्ट यू सी दिस जाई फॉर ज्वाइंट सेट. हमने जो बना रहे हैं उसको किसके लिए बना रहे हैं? फॉर ज्वाइंट सेट. और दिस इज नोन एज द A माइनस बी, दिस इज नोन एज द B माइनस A. A माइनस बी कौन सा पोर्शन है? देखो यहाँ से हैंड्स हमारे, देखो यहाँ से ये और ये A माइनस बी हो गया. और दिस पोर्शन एक्सेप्ट द कॉमन पोर्शन B माइनस A. और दिस पोर्शन इज, ये जो पोर्शन है, दिस इज द A इंटरसेक्शन B. दिस इज क्लियर? अब यहां पे दिया है पहला, या कॉर्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B. तो कैसे होता है इसका फार्मूला? देखो, कॉर्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कॉर्डिनल नंबर ऑफ B माइनस कॉर्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B. क्यों ऐसा हुआ? A ये पूरा हो गया, ठीक है, फिर B हमने ये पूरा लिया, ये कितनी बार आ गया पोर्शन? 2 बार आ गया, इसीलिए यहां एक बार माइनस कर दिया गया. और इसको एक दूसरे तरह से लिख सकते हैं, कॉर्डिनल नंबर ऑफ A माइनस B प्लस कॉर्डिनल नंबर ऑफ B माइनस A प्लस कॉर्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B. मतलब इस पोर्शन के एलिमेंट, फिर इस पोर्शन के एलिमेंट और इसके कॉमन, ऐसे भी लिख सकते हैं. वेन डायग्राम क्लियर है तो फार्मूला यू कैन जनरेट. सेकेंड, कॉर्डिनल नंबर ऑफ A माइनस B. A माइनस B, A माइनस B को इस पोर्शन को देखो, यहां पे ये इस पोर्शन को हमको लिखना, कैसे लिख सकते हैं? कॉर्डिनल नंबर ऑफ A माइनस कॉर्डिनल नंबर ऑफ, इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को हटा दो यहां से, A इंटरसेक्शन B. दूसरा भी तरीका है. दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम दोनों का यूनियन ले लिए और यूनियन से B को हटा दिए. कॉर्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B में क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा पोर्शन हो जाएगा, और उसमें से B को निकाल दिए, माइनस कॉर्डिनल नंबर ऑफ B. In this way also you can write. If B minus A you are writing, तो कॉर्डिनल नंबर ऑफ B माइनस कॉर्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू कॉर्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B माइनस कॉर्डिनल नंबर ऑफ A. हटाएंगे तो इसी पैटर्न पे B माइनस A को लिख लेंगे. क्लियर? Here, this already I have explained about the complement. Cardinal number of A complement equal to cardinal number of xi minus cardinal number of A.
इसका सेकेंड पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया ना, मैं लिख नहीं रहा. यू हैव अंडरस्टूड? इफ नॉट क्लियर यू कैन आस्क. नाउ फॉर द cardinal number of a minus b is known as the cardinal number of only a. केवल a में एग्जिस्ट करेगा. और 3 cardinal number of a union b union c. cardinal number of a plus cardinal number of b plus cardinal number of c plus minus cardinal number of a intersection b minus cardinal number of b intersection c minus cardinal number of a intersection c plus cardinal number of a intersection b intersection c. This is the formula for the 3 sets. Is it clear? Okay. So now you will see the some examples. चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दें. आई सपोज टू एक्सप्लेन सम क्वेश्चन. और there is 24 questions. तो चलो सेकेंड क्वेश्चन से चलते हैं. A x such that x is a natural number. X such that x belongs to natural number and 1 is less than x less than 6. B x such that x belongs to natural number and 6 is less than x less than 10. Here less are equal to. Here what will be number? It is natural number. So 2, 3, 4, 5, 6. What will be here? 6 तो आएगा नहीं, 6 से बड़ा हो गया. 7, 8, 9. Yes, will not take the 10. Both are A and B are disjoint set. तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है, नॉन ओवरलैपिंग है. तो डिसजॉइंट सेट A यूनियन B पूरे एलिमेंट हो जाएंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सेकेंड A इंटरसेक्शन B A intersection B empty set, nothing is common. Third A minus B, तो कुछ भी कॉमन नहीं है B में से, इसलिए A से कुछ भी नहीं हटाना. सेट A. और फोर्थ B माइनस A इक्वल टू B, क्योंकि B माइनस A क्या होता है? B और A में से जो कॉमन है उसको B से हटा देते हैं. So disjoint set, if the two sets are given, nothing is common between them, this is known as the disjoint set. तो थर्ड disjoint set पूछ रहा, बता सकते हो. फोर्थ में क्या है? A empty universal set, A set, B set, then find the following. ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ. फोर्थ here universal set you make, ये universal set हो, ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया. Here 1, 2, 3 दोनों में कॉमन क्या है? 1, 2, 3, 4,
1 2 3 5 6 2 3, तो 2 3 कॉमन हो गया, तो 2 3 को यहां लिख दो और यहां पे 1 5 6, करेक्ट। 2 3 4 7 8, 4 7 और 8, 4 7 8 हो गया। देन व्हाट आर रिमेन हियर, 1 से लेकर के 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है सब ए और बी में ही है। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। फर्स्ट ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और दिस इज द यूनिवर्सल सेट के बराबर। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी 2 3, this is the 2 3, correct। a minus b, अब a में से जो कॉमन है उसको निकाल देंगे, क्या बचेगा 1 5 6, हमने वेन डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत सिंपल। फोर्थ, b minus a 4 7 8, 5 a intersection b complement is equal to a minus b, a minus b होता है 1 5 6। सिक्स, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, यूनियन बी कंप्लीमेंट जाई माइनस ए यूनियन बी, तो कुछ भी नहीं बचेगा, दैट विल बिकम एम्प्टी सेट। भाई जो यूनिवर्सल सेट है वही ए और बी में है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, नथिंग विल बी रिमेन, एम्प्टी सेट। Here, seventh, A complement intersection B complement। इसका सबसे आसान तरीका तुमको दे देते हैं, क्या होता है A यूनियन B complement, इसको याद कर लेना। क्लियर? Okay, now this will be जाई माइनस ए यूनियन बी, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट। इस तरीके से हो गया। दूसरा तरीका देखो, ये तुमको याद कर लेना है, ये होता है फोर्थ क्वेश्चन है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। सेकेंड, ए intersection B complement of A intersection B equal to complement of A union complement of B, you must remember this। अब दूसरे तरीके से मान लो इसी तरीके से करना है तो कंप्लीमेंट ऑफ A खोजो। कंप्लीमेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, ये 4 7 8 आर करके मैं दे रहा हूं दूसरे मेथड से। कंप्लीमेंट ऑफ A तो 4 7 8, और फिर कंप्लीमेंट ऑफ बी, कंप्लीमेंट ऑफ बी 1 5 6, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये लॉजिकल है, ये आगे तुमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी इसलिए मैंने इसको यहां एक्सप्लेन कर दिया। ये तो यहां से भी कर सकते हो। क्लियर? नाउ सी द another question, another